Yes, screen is visible. May I audible, students? Yes, ma'am, it's visible. Audible. Okay, thank you. Yes, concurrency control. Okay, concurrency control that we have started in the previous last lectures. Okay, the last week we have started this topic. Concurrency control. What is the concurrency? मतलब the multiple transaction can be executed simultaneously can call as concurrency, and we have to control that type of transaction. Okay, if we will not control the concurrency, okay, then what will be happen? Some problems will be created. The problems, which problems, like lost update problems, dirty read problems, or unrepeatable read problems. Okay, or you can say inconsistent retrievals problems. So these problems will be occur if we will not handle the concurrency. Okay, the primary goal of concurrency is to ensure the atomicity of the execution of transaction in a multi-user database environment. Okay, which environment? Multi-user. Matlab means there is one database. Okay, there is one database, and that database is shared or accessed by multiple users at the same time. Okay, so these problems we have discussed, okay, in last lectures. Now protocol we have started. Okay, what is the meaning of protocols? Protocols are a set of rules, regulations we need. Why? To avoid the those problems that we have seen up above. Okay, dirty read problems. Okay, inconsistent state problems, जो ऊपर problems हमने देखा उसको resolve करने के लिए we need some rules, regulation, protocols. So there are concurrency control protocols are there. Okay, so different concurrency control protocol offer different benefits between the amount of concurrency they allow and the amount of overhead that they impose. Okay, what is transaction? Transaction is a set of activities, small activities. Okay, what is a transaction? Transaction is a set of small activities. Which are the transaction properties? Which are the transaction properties? Transaction properties कौन सा है? Atomic acid. Acid say you can remember. Acid is a short way to remember the properties of transaction. A for atomicity, C for consistency, I for isolation, okay, and D for durability. So these four are the properties of transaction. The transaction atomic होना चाहिए. Transaction should be atomic. Okay, transaction so when that leads the database in consistent state. Okay, isolations. Okay, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो एक दूसरे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वर्किंग होना चाहिए. ओके, दैट इज कॉल्ड दी isolation and durability. Okay, once we will change in the database or the database एक बार change हो गया. Okay, तो कोई अगर data लॉस हो रहा है तो कोई भी इश्यू क्रिएट हो रहा है, डेटाबेस करप्ट हो रहा है, तो कोई भी नेटवर्क इश्यू है तो डेटाबेस में जो चेंज किया वो स्टेट उसका चेंज नहीं होना चाहिए. तो फाइनल चेंज करने के बाद दैट इज द ड्यूरेबिलिटी. ओके, मतलब डेटा परमानेंटली उसमें अपडेट हो जाना चाहिए. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन. ओके, कॉन्करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होगा और यू कैन से दी एक्सेस द सेम डेटाबेस. ओके, मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है एक ही डेटाबेस को साइमल्टेनियसली साथ में एक्सेस करे. तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव द कॉन्करेंसी प्रोटोकॉल्स. ब्लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स, टू फेज प्रोटोकॉल, timestamp based protocols, and validation based protocols. Okay, you have to remember these four types of protocols. The first is log based protocol, the third is two phase protocol, timestamp based protocols, and validation based protocol. Anyone else remember what is log based, what is two phase, what is timestamp based protocols? Hmm? याद है किसी को? Log based protocol. Okay, ठीक है, चलो I will explain. Log based protocol. In this type of protocol, any transaction cannot read or write the data until it acquires an appropriate lock on it. Okay, on it मतलब database में suppose any transaction want to update or any transaction want to update that database, तो वो transaction directly
डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। उसको एक्सेस करने के लिए द ट्रांजैक्शन हैव टू टेक द लॉक, उसको क्या लेना पड़ेगा, लॉक लेना पड़ेगा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक है, shared lock is there and the second one is exclusive lock. Okay, the first one is shared lock and the second one is exclusive lock. What is shared lock? It is also known as read only lock. Okay, there are always two type of operations will be performed on the database when any transaction occurs. कौन सा दो operation perform होता है database पे? The first is read operation, the second is write operations. Okay, जब भी data कोई transaction will be occur ना, तो there are two types of operation will be performed on the database. The first is read operation, the second is write operation. What is the meaning of read operation? कि कोई database में अगर data only read करना है, select, okay, select query is used for the read operations. Okay, अगर आप select करो, okay, मतलब data retrieve करो, कोई भी data you are retrieving, you are returning, displaying any type of data or using any conditions, कोई भी condition आप use करो, तो that is क्या हो गया कि डेटाबेस को रीड करना, डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव करना। एंड इफ यू आर डूइंग एनी इंसर्ट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशंस और डिलीट ऑपरेशन, ऐसा कुछ परफॉर्म करो, दैट इज कॉल्ड द राइट ऑपरेशन। मतलब यू आर चेंजिंग, यू आर अपडेटिंग योर डेटाबेस, दैट इज अ राइट ऑपरेशंस। ओके, तो कोई ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है, द मनी इज ट्रांजैक्टेड, मनी इज डेबिटेड, ओके, मनी डेबिट हो रहा है फ्रॉम अकाउंट ए में से, तो व्हाट विल बी हैपन? तो पहले तो रीड ऑपरेशन होगा, मतलब डिस्प्ले होगा कि हाउ मेनी मनी आधार इन द अकाउंट, ओके, देन उसमें से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन वो डिडक्ट होगा, ओके, देन उसमें फाइनल चेंजेस होगा, राइट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। ओके, तो कोई भी ऑपरेशन, सॉरी, इन ऑन एनी ट्रांजैक्शन two operations will be performed, read and write. So according to that there are two types of lock है, एक तो shared lock है and exclusive lock है। shared lock मतलब if any transaction want to only retrieve the data, उसको डेटा रिटर्न करवाना, उसको डेटाबेस में कुछ चेंज नहीं करना है, that transaction want only read the data, for example उसको बैलेंस रीड करना है, ओके, अपना अकाउंट चेक करना है, ओके, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो only read operations required, okay, only shared lock will required। तो क्या करेगा वो ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट फॉर द shared lock, ओके, तो shared lock मतलब क्या, read only lock, okay, it is shared lock is also known as read only lock। in a shared lock the data item can only read by the transaction, okay, अब कोई ट्रांजैक्शन shared lock एक्वायर कर रहा है तो वो क्या करेगा, डेटाबेस को रीड कर पाएगा, डेटाबेस को कुछ चेंजेस नहीं करेगा, ओके। ओके, यस, ओके, shared lock मतलब क्या, only read operation will be performed, okay, by the transaction of the database, and it can be shared between transactions because when transaction holds a lock then it can update the data on the data, it cannot update the data on the data items, means अगर सिस्टम में कोई मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन को मल्टीपल रीड लॉक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वाई? बिकॉज वो सबको डेटाबेस क्या करना है, रीड करना है, किसको राइट नहीं करना है, कोई राइट करने डेटाबेस में कुछ अपडेट नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, तो अपडेशन का कोई इश्यू नहीं होगा। तो मल्टीपल मतलब शेयर्ड जो लॉक है, ओके, द ट्रांजैक्शन कैन शेयर, मतलब एक फ्री ट्रांजैक्शन है तो साइमल्टेनियसली आ रहा है, तीनों ट्रांजैक्शन को हम लोग शेयर्ड लॉक एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं हम लोग, ओके। व्हाई? बिकॉज तीनों को रीड ही करना, डेटाबेस में रिटर्न करवाना, कुछ अपडेट नहीं करवाना। हाँ, इफ एनी डेटाबेस जो है, सॉरी एनी ट्रांजैक्शन, उसको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, राइट लॉक चाहिए, ओके, तो उसको सम कंडीशन हैव टू फॉलो, ओके। इन एक्सक्लूसिव लॉक मतलब राइट लॉक द डेटा आइटम कैन बोथ read as well as written by the transaction। अगर ट्रांजैक्शन के पास एक्सक्लूसिव लॉक है तो ट्रांजैक्शन कैन रीड as well as write the database। This lock is exclusive and in this lock multiple transaction do not modify the same data type simultaneously, okay, मतलब multiple transaction आ रहे तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन को हम लोग सबको एक साथ में एक्सक्लूसिव लॉक असाइन नहीं कर सकते हम, मतलब डेटाबेस, ओके, डेटाबेस कैन नॉट असाइन दी मल्टीपल एक्सक्लूसिव लॉक टू मल्टीपल ट्रांजैक्शन, क्योंकि सब लोग साथ में अपडेट करने जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सेम डेटाबेस में कौन क्या अपडेट करा है। आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल, ओके, मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में, एक नोटबुक है, सबके लिए एक ही नोटबुक है, एक ही
नोटबुक में सबको अपना अपना डेटा एंट्री करना है, तो असाइनमेंट लिखना है सबको एक ही नोटबुक में, तो हमको कैसे पता चलेगा किसने कौन सा असाइनमेंट लिखा है? ओके, सो दैट इज जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ओके, तो डेटाबेस में टू टाइप्स का लॉक है, एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड लॉक। ओके, तो लॉक प्रोटोकॉल्स का 4 टाइप्स है। द फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी लॉक प्रोटोकॉल। Okay, it is the simplest way of locking the data while transaction. Simplicity lock-based protocols allow all the transaction to get the lock on the data before insert or delete or update on it. Okay, simplistic lock protocol है, तो according to this protocols, all the transaction, okay, मतलब ये जो प्रोटोकॉल है क्या अलाउ करेगा ऑल द ट्रांजैक्शन टू गेट द लॉक ऑन द डेटाबेस बिफोर इंसर्ट डिलीट और अपडेट ऑन इट। इट विल अनलॉक द डेटा आइटम आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शंस। ओके, दैट इज सिंपल लॉक है। जो ट्रांजैक्शन आ रहे सिस्टम में सबको लॉक दे रहा है। ओके, वन बाय वन जो भी जैसे आ रहा है सबको लॉक दे रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन अपना काम खत्म करने के बाद लॉक को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है, अनलॉक कर देगा डेटा आइटम्स को। अगर लॉक है, सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव वन लॉक, मेरे पास एक लॉक एक्सक्लूसिव लॉक है, तो अगर कोई और ट्रांजैक्शन आ रहा है, ओके, वो ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिलेगा। ओके, वो ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज मेरे पास है, मैं अभी काम कर रही हूँ उस पे। हाँ, व्हेन आई विल फिनिश माय वर्किंग ऑन दैट डेटाबेस देन आई विल रिलीज दैट लॉक। मैं वो लॉक को क्या कर दूंगी? रिलीज कर दूंगी, अनलॉक कर दूंगी। ओके, देन आफ्टर जो मेरे पीछे जो आया था ट्रांजैक्शन, ओके, ये साथ में जो आया था उसको लॉक मिलेगा। दैट इज अ working of the simplistic lock protocol. The next is pre-claiming lock protocol. The pre-claiming lock protocols evaluate the transaction to list all the data items on which they needs the lock. Okay, pre-claiming मतलब ट्रांजैक्शन को पहले उनको रिक्वेस्ट करना होगा। ट्रांजैक्शन शुड रिक्वेस्ट, ओके, टू द डेटाबेस को कि हमको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को या तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा कि जो डेटाबेस में ये डेटा है, सारे डेटा के लिए वी वांट दी लॉक्स। ओके, एडवांस में उसको पहले बोलना पड़ेगा। बिफोर इनिशिएटिंग एन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इट रिक्वेस्ट डीबीएमएस फॉर ऑल द लॉक ऑन दोस डेटा आइटम्स। ओके, उसको जितना जितना टेबल्स पे, what is database? Database is a collection of the data, means we can create the multiple tables under the one database. Okay, हम लोग क्या करते हैं, एसएनजी से एक ही डेटाबेस बनाया, बट in that one database we can create the multiple tables. जैसे वर्कर टेबल बनाया, बोनस टेबल बनाया, टाइटल टेबल बनाया। ये करंटली हम ये टेबल्स पे काम करें, बट ये तीनों जो टेबल है वो किस कौन से डेटाबेस में है? एसएनजी से एक ही डेटाबेस में है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है, तो ट्रांजैक्शन को जो टेबल पे जो डेटा पे काम करना है उसके लिए उसको पहले रिक्वेस्ट देना होगा कि मुझे ये डेटा के लिए ये वाले लॉक्स चाहिए। ओके, उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल? प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। इफ ऑल द लॉक्स आर ग्रांटेड, ओके, अगर सारे लॉक उसने जो ट्रांजैक्शन ने रिक्वेस्ट किया था, ओके, और सारे लॉक्स अगर उसको ग्रांट हो गया, ओके, मिल गया, ओके, if all the transaction locks are granted, then this protocol allow the transaction to begin. Okay, when the transaction is completed then it release all the locks. Okay, अगर उसको transaction को locks मिल गया, okay, वो transaction क्या करेगा? अपना जो भी डेटा पे काम करना है काम खत्म करेगा and then release कर देगा, and then release कर देगा। Okay, if all locks are not granted, then this protocol allow the transaction to roll back and waits until all locks are granted. अगर जो ट्रांजैक्शन ने परमिशन ले रहे थे, ओके, लॉक्स के लिए रिक्वेस्ट किया था, अगर उसको नहीं मिल रहा है, ओके, उसको नहीं मिल रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। ओके, या तो फिर अगेन सम टाइम के बाद वो ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सेम लॉक्स के लिए। तो दिस इज द प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल्स। ओके, व्हिच प्रोटोकॉल्स? प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल्स। Yes, students, we have already covered these protocols, but न्यू प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो दैट आपको जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था काफी टाइम पहले वो याद हो जाएगा। ओके, दिस इज द फिगर लॉक अटेंड। ओके, आप उसका ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा, देन लॉक विल बी रिलीज। द थर्ड टाइप इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल।
तो लॉकिंग के ये टाइप्स है, लॉक प्रोटोकॉल्स के ये टाइप्स है, यू कैन सी हियर there are log based protocols, two phase protocol, timestamp based protocol and validation based protocols. The first हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, log based protocols का ही टाइप्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो log based protocols में 4 टाइप्स है, फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी, सेकंड इज प्री क्लीनिंग, third is two phase locking protocol and the fourth one is strict two phase locking protocol. Okay, कौन सा, strict two phase locking protocol. Okay, two phase locking protocols एज अ नेम पेज से हम लोग वी कैन जज कर सकते हैं कि टू पार्ट होगा, टू फेस मतलब टू फेसेस आर देयर. ओके, द टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल डिवाइड द एग्जीक्यूशन फेस ऑफ द ट्रांजैक्शन इनटू थ्री पार्ट्स मतलब एक्चुअली वो दो ही है बट उसको तीन में डिवाइड किया. इन फर्स्ट पार्ट व्हेन द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टार्ट इट सीक परमिशन फॉर द लॉक इट रिक्वायर्स. ओके, इट सीक परमिशन मतलब रिक्वेस्ट करेगा, वर्ड अलग अलग है बट पहले तो वो रिक्वेस्ट ही करेगा लॉक के लिए. इन द सेकंड पार्ट में द ट्रांजैक्शन को सब लॉक मिल गया, ट्रांजैक्शन एक्वायर्स ऑल द लॉक्स, ट्रांजैक्शन एक्वायर्स मतलब ट्रांजैक्शन को सब लॉक्स मिल गया. ओके, सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड फेज में क्या होगा, ट्रांजैक्शन acquire all the locks, ट्रांजैक्शन को सब लॉक्स मिल जाएगा. the third phase is started as soon as the transaction release its first lock. okay, the transaction सपोज कोई ट्रांजैक्शन है उसको 3 लॉक चाहिए. ओके, 3 टेबल्स के लिए 3 लॉक चाहिए तो उसको 3 लॉक मिल गया. ओके, तो सेकंड लॉक खत्म हो गया. थर्ड लॉक कब होगा, जब ट्रांजैक्शन लॉक अपना रिलीज करना स्टार्ट करेगा. ओके, उसका एक टेबल पे काम खत्म हो गया तो उसने वो टेबल के लिए जो लॉक लिया था उसको वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा. ओके, तो जब से वो रिलीज करना स्टार्ट करेगा लॉक, देन द ट्रांजैक्शन का थर्ड फेज विल बी स्टार्टेड. ओके, इन द थर्ड फेज द ट्रांजैक्शन जो है कैन नॉट डिमांड एनी न्यू लॉक. सेम ट्रांजैक्शन को अगर न्यू लॉक चाहिए अगेन तो वो डिमांड नहीं कर सकता. ओके, इट ओनली रिलीज द एक्वायर लॉक्स. एक बार उसने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया लॉक्स तो वो अगेन उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. ओके, इट ओनली रिलीज द एक्वायर लॉक. दिस इज अ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. कौन सा प्रोटोकॉल है, टू फेज. ओके, मतलब पहले तो उसको जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शन का तो वो लॉक्स के लिए अप्लाई करेगा, उसको लॉक्स मिल जा रहा है, सेकंड उसमें उसको लॉक मिल जाएगा व्हेन इट गेन्स ऑल द लॉक्स. ओके, अब उसको जब सारे लॉक्स मिल गया और इट एक्वायर्स ऑल द लॉक्स तो अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेगा और जैसे जैसे उसका लॉक का काम खत्म हो रहा है हर एक लॉक्स वो क्या करेगा, रिलीज करेगा. जब जैसे वो रिलीज करना स्टार्ट करता है तो थर्ड फेज विल बी started. Okay, third phase. And in the third phase transaction cannot demand any new lock. एक बार उसने रिलीज करना लॉक स्टार्ट कर दिया तो वो न्यू कोई लॉक के लिए अगेन डिमांड नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. ओके, सेम फिगर है. देयर आर टू फेज, उसको डिवाइड किया है, ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज. ओके, ये जो हमने ऊपर 3 फेजेस बताया उसको जो पार्ट्स बताया उसको ना 2 फेज में किया है, ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज. ओके, प्रोसेस सेम है और उसको नेम दे दिया है. द फर्स्ट फेज इज ग्रोइंग फेज, 2 फेज बोला है ना, तो फर्स्ट इज ग्रोइंग फेज एंड द सेकंड इज श्रिंकिंग फेज. In the growing phase, the new lock on the data item may be acquired by the transaction but cannot be released. Okay, वो क्या करेगा, लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उसको लॉक मिल रहा है, जैसे उसको लॉक मिला देन वो लॉक को रिलीज नहीं करेगा जब तक वो अपना काम खत्म नहीं करता तब तक. एंड श्रिंकिंग फेज में क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जीक्यूशन द ट्रांजैक्शन कैन रिलीज इट्स लॉक. ओके, ट्रांजैक्शन क्या करेगा, उसके लॉक को रिलीज करता जाएगा बट वो न्यू लॉक के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. मतलब न्यू लॉक कैन नॉट, या तो यू कैन से न्यू लॉक कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय द ट्रांजैक्शन. दैट इज द श्रिंकिंग फेज. ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग, ग्रोइंग मतलब लॉक के लिए रिक्वेस्ट करना, लॉक लेना, एंड श्रिंकिंग फेज मतलब अपना एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद लॉक्स को क्या करना, रिलीज करना. ओके, so there are two phases of two phase locking protocol. Okay, the next type is strict two phase locking. टू फेस ही है बट स्ट्रिक्ट है तो थोड़ा उन्होंने एक कंडीशन उसमें ऐड कर दिया है. ओके, एक कंडीशन ऐड कर दिया है. द फर्स्ट फेज ऑफ स्ट्रिक्ट टू पीएलई से सिमिलर. ओके, उसका फर्स्ट फेज जो है ग्रोइंग फेज सिमिलर है. इन द फर्स्ट फेज आफ्टर acquiring all the locks the transaction continue to execute normally. फर्स्ट फेज सेम है. व्हाट इज द डिफरेंस, क्या है, टू फेज प्रोटोकॉल्स एंड स्ट्रिक्ट टू फेज में क्या डिफरेंस है कि
इन द टू स्ट्रिक्ट टू फेस प्रोटोकॉल्स में उसको वेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को जब तक सारे लॉक्स वो रिलीज नहीं करता तब तक। ओके, तो स्ट्रिक्ट टू फेस डज नॉट रिलीज अ लॉक आफ्टर यूजिंग इट। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बताया ट्रांजैक्शन ने 3 लॉक्स एक्वायर किया है, तो एक लॉक का काम खत्म हो गया तो वो ट्रांजैक्शन क्या करेगा, अपना लॉक छोड़ देगा। देन सेकंड जो ट्रांजैक्शन ने सेकंड लॉक लिया था, अपना उस पर काम कर रहा है, अपना डेटा मॉडिफाई करना था, जो भी करना था कर दिया, फिर वो सेकंड लॉक को रिलीज कर, मतलब वन बाय वन जैसे जैसे ट्रांजैक्शन का अपना काम खत्म हो रहा है, वो उसने जो लॉक्स लिए थे फॉर डेटा के लिए दैट विल बी रिलीज। बट इन स्ट्रिक्ट टू फेस में ऐसे नहीं होगा। ओके, इन स्ट्रिक्ट टू फेस में क्या होगा कि ट्रांजैक्शन ने सपोज 3 लॉक्स लिया है, तो जब तक तीनों लॉक्स अपना काम खत्म नहीं करते तब तक ट्रांजैक्शन वो तीनों लॉक को रिलीज नहीं करेगा। मतलब उसको तीनों लॉक्स एक साथ परमिशन लिया था तो वो तीनों लॉक को एक साथ ही रिलीज करेगा। ओके, दैट इज a strict two phase protocol. Okay, strict two phase protocol wait until the whole transaction to commit and then it release all the locks at a time. एक साथ में वो जितना भी लॉक्स उसने लिया था ना, हर एक लॉक्स को वो साथ में रिलीज करेगा। टू फेस में वैसे नहीं था, ट्रांजैक्शन अपना अपना काम खत्म, अपना लॉक जो भी लॉक उसने यूज कर लिया, काम खत्म हो गया वो डेटाबेस वो डेटा पे, तो लॉक को रिलीज करता जाएगा। बट इन स्ट्रिक्ट टू फेस में क्या होगा, ट्रांजैक्शन एक साथ में ही लॉक्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। एक्वायर करना है, रिलीज करना। एक्वायर करना मतलब रिक्वेस्ट करना। ओके, मतलब गेन करना। एक्वायर मतलब गेन करना, उसने रिक्वेस्ट किया तो उसको लॉक मिल गया, मतलब एक्वायर, उसने लॉक ले लिया ट्रांजैक्शन, उसको परमिशन मिल गया। ओके, लॉक के लिए जिसने उसको रिक्वेस्ट, जो लॉक के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था। तो ये थोड़ा वर्ड्स जो है दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, एक्वायर करना, गेन करना, ठीक है, कमिट, रोल बैक, सिंकिंग फेज, ये जो टर्म्स जो है दैट यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज न्यू फॉर यू, बट उसको रीड करोगे तो यूज टू हो जाओगे। ओके, द नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है, नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प। लॉकिंग प्रोटोकॉल्स वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, लॉकिंग हमने कंप्लीट किया, टू फेज कंप्लीट किया। नाउ टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। ओके, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल यू कैन से। ओके, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल और टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। The timestamp ordering protocol is used to order the transaction. हर एक प्रोटोकॉल का एक ही काम है कि जो कॉन्करेंसी, ड्यू टू कॉन्करेंसी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है उसको क्या करना, शॉर्ट आउट करना। ओके, जो मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन डेटाबेस पे एक्सेस करे तो उसको थोड़ा कुछ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करना। एवरी प्रोटोकॉल कुछ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करेंगे मल्टीपल ट्रांजैक्शन को टू एक्सेस द सेम डेटाबेस। ओके, तो उससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स ऊपर देखा हम लोग, डर्टी प्रॉब्लम्स या तो इनकंसिस्टेंट स्टेट में डेटाबेस जा रहा है, तो वो सब नहीं होगा। ओके, तो ये प्रोटोकॉल का भी यूज तो वही है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल करना। ओके, बट उसका वे अलग है, उसका थोड़ा रूल्स अलग है, रेगुलेशन उसने जो बनाया रूल्स वो अलग है। ओके, timestamp ordering protocol is used to order the transaction based on that timestamp. Okay, the order of transaction is nothing but the ascending order of transaction creation. सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन जैसे पहले आएगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, देन उसके बाद जो आ रहा है उसको सेकंड प्रायोरिटी, देन जो आ रहा है वो थर्ड प्रायोरिटी। ओके, द प्रायोरिटी ऑफ द ओल्ड ट्रांजैक्शन इज हायर देन व्हाट एग्जीक्यूट द फर्स्ट। जो ट्रांजैक्शन फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जो सेकंड आएगा उसको सेकंड प्रायोरिटी, and according to that priority the lock will be assigned to all the transaction. Okay, to determine the timestamp of transaction this protocol uses the system time or logical counter. Okay, हमारे सिस्टम में जो टाइम जो है वो टाइम को यूज करेगा। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अभी 5 हो रहा है, ठीक है, तो 5 पे कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है, देन कोई ट्रांजैक्शन सपोज 5 पे आया है। ओके, या तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो जो फर्स्ट सिस्टम में जो क्रिएट होगा, जो ट्रांजैक्शन फर्स्ट सिस्टम में क्रिएट होगा वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसको फर्स्ट लॉक असाइन किया जाएगा। ओके, द लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू मैनेज द ऑर्डर बिटवीन conflicting pairs among transaction at the execution time, but timestamp protocol based protocol start working as soon as transaction is created. Okay, this is the main thing. The lock based protocol, okay, the lock based protocol is used to manage the order between conflicting pairs among the transaction at the execution time. Okay, at the execution time
but the timestamp based protocol start working as soon as transaction is created. जैसे सिस्टम में ट्रांजेक्शन आया उसको दे दिया, लॉक दे दिया, जैसे सेकंड आया उसको दे, जैसे थर्ड आया, मतलब जैसे ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रहा है वैसे लॉक्स आर असाइन. ओके, बट ऊपर लॉक बेस में क्या हो रहा था, ट्रांजेक्शन आएगा, ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करेगा उसको कितना लॉक्स चाहिए, देन वो रिक्वेस्ट करने के बाद उसको क्या करे थे, दे रहे थे, ठीक है, असाइन कर रहे थे लॉक्स. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन log based and timestamp transaction. Okay. Advantages and disadvantages of timestamp ordering protocols. Okay. See, यहाँ पे time example दिया हुआ है. Let's assume that there are two transactions T1 and T2. Suppose transaction T1 has entered the system at 007 time पे आ रहा है, and transaction T2 जो है वो 009 time पे आ रहा है. तो T1 has the highest priority. Okay. T1 has the highest priority. And T2 has उसके बाद उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा. ओके, तो दिस इज अ टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. यस, द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू प्रोटोकॉल टाइम्स TO मतलब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. ओके, एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी सिंस द प्रीसेडिंग ग्राफ इज फॉलोज एज. सीरियलाइजेबिलिटी मतलब क्या, 1 by 1. सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, मतलब 1 by 1. ओके, जो पहले आ रहा है सिस्टम में वो पहले होगा, जो सिस्टम में बाद में आएगा उसको बाद में लॉक मिलेगा. ओके, ट्रांजैक्शन विद स्मॉलर टाइम स्टैम्प. ओके, ट्रांजैक्शन विद लार्जर टाइम स्टैम्प. ओके, ग्राफ थ्रू उन्होंने बताया, उसका कुछ भी उसमें है नहीं, उसको सीरियसली नहीं लेना है उसको, मतलब ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है, ग्राफ थ्रू उन्होंने बताया. ओके, मतलब जो पहले आएगा ऑब्वियसली उसका टाइम कम होगा, जो बाद में आएगा उसका टाइम ऑब्वियसली ज्यादा होगा. द नेक्स्ट इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल. ओके, वैलिडेशन ये एक बाकी था हमारा, दिस इज द न्यू, यहाँ से हमने छोड़ा था. ओके, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल. Validation phase is also known as optimistic concurrency control technique. What is the meaning of optimistic? Optimistic मतलब क्या? What is the meaning of optimistic? कौन बताएगा मुझे? What is the meaning of optimistic, students? अरुण ने बहुत अभी ज्वाइन करे हो अरुण. लेक्चर्स खत्म हो रहा है. Yes, Arun, you are very late at the end of the lecture. You are joining. Arun, so late. It's now ending the lecture. मैम कुछ काम था मुझे. Okay, कोई बात नहीं, चलो. Recording you can see. Okay, recording देख लो, जो students absent है, they can see the recorded lectures. Okay, or have the subjects का. Okay, चलो. Validation based protocols. Validation phase is also known as optimistic concurrency technique.